Good afternoon, guys. So yesterday, if you remember, we discussed about MST intra-region, that how MST will work in a single region. Now my concern is, in a intra-region, first of all, there will be a single BPDU, that is version 3. This single BPDU will carry information of instance 0 as well as 1, then 2, as any number of instances available. Fine. By default, with your priority, which number is added? Instance number. Which number is added? This thing is clear. After that, in a single region or in the same region, convergence is performed according to RSTP. It means we will be using those same messages, proposal and agreement. Done. And we discussed this thing that switches sharing same name, same revision number, same instance to VLAN mapping belong to same region. Belong to same region. Clear? Now my question is, भाई hello, बात नहीं करनी यार. How MST क्लियर. अब सबसे पहले ना आपको बीपीडीयू दिखाऊंगा. क्या दिखाऊंगा? बीपीडीयू. लुक हियर. This BPDU belongs to MST version 3. All of you look here. Guys, this is the BPDU. All of you can see this information. Root bridge ID, bridge identifier. After that, MAC address of root bridge, MAC address of sender. All of you can see these things. Hold time, forward delay time. This information is of instance 0, or you can call it CIST. ये इंफॉर्मेशन किसकी है? देखो MST एक्सटेंशन में यहां भी इंफॉर्मेशन किसकी होगी? इंस्टेंस 0, इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2. Here also we will be having information of different instances, but in the main BPDU, which instance we are carrying? That is also called CIST. Clear? To all of you? भाई all of you मतलब सबको समझ में आ गई ये बात? अब देखो, let's say I have multiple reasons.
Done? Let's say this is my topology. Region region 3. Clear? These are MAC addresses of these switches. Done? Any problem? Okay, let me make some more switches. One more switch in region 1. Done? Let's say its MAC address is X. ठीक है भाई. अब एक बात बताओ. First of all, tell me one thing. In this region, how many instances are there? Let's say 2 instances, instance 0, instance 1. Clear? In this region, instance 0, instance 2. In this region, instance 0, instance 3. Instance? In all 3 regions, I have different instances. Why I have created different instances? Just to make these regions different. सिर्फ इन regions को क्या बनाने के लिए? Different. Clear? Let's say to instance 0. Here, which VLANs are mapped? Six to with instance 1, which VLANs are mapped? 1 to 5. Done. Here with instance 0, which VLANs are mapped? 10 to with instance 2, 1 to here with instance 0, VLAN, let's say 1 to 4, 7 to 40, 9 4, and with instance 1, 5 and any problem? No. In all 3 regions we have different VLAN to instance mapping. Now what will happen? Listen to me carefully. First of all, how these regions will communicate? These regions will communicate using instance 0 BPD. Which BPD? Instance 0 video. I just show you one BPD. मैंने अभी आपको एक BPD दिखाया जिसके अंदर जो मेरा BPD की मेन फील्ड्स थी उसमें कौन से इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन है? 0 दिखाया अभी? एग्री? अब एक बात याद रखना, कल भी एक बात बताई थी. Yesterday also I told you one thing that in a single region for every instance there will be a root bridge and for instance 0 there will be a root bridge. I told you the same. For every instance there will be a root bridge and for instance 0 there will be a root bridge. And I also told you one thing that between regions also we will be having a root bridge. If we are using inter-region MST, between regions also we will be having a because we also have to prevent loop between regions. देखो एक region के अंदर loop कैसे prevent होगी? बहुत आसान है, कल हमने देख लिया. How loop will be prevented inside a region that we have discussed yesterday. But today we will discuss how loop is prevented between regions. Between regions. So guys, look here. In region 1, in instance 0, in region 1, in instance 0. Just tell me one thing, which will become root bridge? A. Yes or no?
It means A will be forwarding IST BPDUs. IST instance 0 BPDUs, yes or no? Yes, sir. To 3 also and to B also. And how loop is prevented here? DP, DP, RP, RP, DP, block. Done? Done? लूप प्रिवेंट हो गई एक रीजन में लूप प्रिवेंट हो गई ना. नाउ बी विल फॉरवर्ड इंस्टेंस 0 BPDU आउट ऑफ इट्स रीजन विदाउट MST एक्सटेंशन. विदाउट, देखो जो मेरा रीजन है इंस्टेंस की व्हाट वी से, एक मिनट रुक जाओ मैं वर्ड नहीं याद कर पा रहा. जो मेरे इंस्टेंस का मतलब है वो कहां तक है? मेरे रीजन में. अब मैं कह रहा हूं अगर इंटर रीजन कम्युनिकेशन हो रहा है इसका मतलब दोनों रीजन्स में VLAN टू इंस्टेंस मैपिंग क्या है? डिफरेंट. मतलब जो मेरे रीजन में VLAN टू इंस्टेंस मैपिंग है वो सामने वाले रीजन में तो है ही नहीं. तो हम शेयर करके क्या करेंगे? यू आर गेटिंग माय कंसर्न. Whenever BPDU is forwarded out of your region, we will never forward MST information in the BPDU. MST extension in the BPDU. Why? Because we two are the reasons. We are sharing different instance to VLAN mapping. What is the need of sending MST extension to that region? There is no need. There is no need. See, it is like this. For the first time, when switch B will send BPDU to C or E, it will add MST extension. But as soon as it will receive a BPDU from B, from C and E with a different MD5 digest, it will get to know it is on the boundary. It will get to know it is on the boundary, and it will stop sending MST extension BPDU. It will only forward instance 0. Which BPDU? मैंने अभी दिखाया ना इंस्टेंस 0 BPDU क्या है. देखो जो मेरा BPDU है उसमें मेन फील्ड में तो क्या इंफॉर्मेशन है? इंस्टेंस 0 की. किसकी इंफॉर्मेशन है? क्लियर? किसकी इंफॉर्मेशन है? इंस्टेंस 0. क्लियर? बात समझ में आई सबको? अब कौन रूट ब्रिज बन गया? स्विच ए ने BPDU भेजा MST एक्सटेंशन के साथ किसको? B को भी और X को भी. B के पास आया, B ने फॉरवर्ड किया C को भी और E को भी. C एंड E है. देखो पहली बार कैसे फॉरवर्ड हुआ था? विद MST एक्सटेंशन. बट एज सून एज इट विल रिसीव BPDU फ्रॉम द अदर रीजंस with a different MD5 digest, it will get to know that we are on the boundary. There is no need to forward MST extension beyond this point. Beyond this point, MST extension को इससे आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी VLAN टू इंस्टेंस मैपिंग का उस रीजन में कोई काम नहीं है. अब अगर मैं फॉरवर्ड नहीं कर रहा तो सामने वाला भी कभी फॉरवर्ड नहीं करेगा. If I am not forwarding, the other person will also not forwarding the same thing. Why? Because उसको भी तो कैसा BPDU रिसीव हुआ होगा? डिफरेंट MD5 digest वाला. कौन से वाला? डिफरेंट MD5 digest वाला. Whenever switch B will send a BPDU, it will forward BPDU with its own MD5 digest. And when C will receive it, C will match it with its own MD5 digest. As my VLAN to instance mapping is different, MD5 digest will be different. So C will get to know it is on the boundary. So when C will forward IST BPDU to B, this time it will forward it without MST information. Clear? Or without MST extension. कर दिया फॉरवर्ड. अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो. किसके पास आया IST BPDU? इसके पास भी आया IST BPDU. Done. Now IST BPDU is of no use for the switches which are in. यार सुन तो ले एक बार पहले. Which are in रीजन 3 में तो पहले ही लूप प्रिवेंटेड है. इन रीजन 3 लूप इज ऑलरेडी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ MST इंट्रा रीजन BPDUs. विद द हेल्प ऑफ MST इंट्रा रीजन. देखो जिन लोगों ने थोड़ा सा पहले पढ़ रखा है यार, जिनके माइंड में ये बात चल रही है ना, कम्युनिकेशन कैसे होगा? जब तक लूप फ्री टोपोलॉजी नहीं बनेगी ना कम्युनिकेशन नहीं होगा. तो सीख लो कि लूप फ्री टोपोलॉजी कैसे बनेगी.
ठीक है, मैं बताऊंगा कम्युनिकेशन कैसे होगा, जो मर्जी वीलन वूलन जो तुम्हारे दिल में वो लेना, ठीक है जी, वो बात की बातें हैं सारी। सबसे पहले आपको क्या समझता है, समझना है हाउ लूप फ्री टोपोलॉजी विल फॉर्म। अब मेरा कंसर्न क्या है, आईएसटी बीपीडीयू स्विच 3 तक तो आ गए, स्विच ई तक, सॉरी कौन सा स्विच तक। अब क्या उसको रीजन 3 में फॉरवर्ड करने का कोई बेनिफिट होगा? क्या रीजन 3 में कोई स्विच इसको समझेगा? क्यों? एक एमएसटी रीजन में कैसा बीपीडीयू समझा जाता है, एमएसटी एक्सटेंशन वाला कैसे समझाता है, तो ये बीपीडीयू टनल हो जाएगा इस रीजन से। क्या हो जाएगा? स्विच 3 किसको देगा? 4 को, और 4 आगे फॉरवर्ड कर देगा किसको? किसको फॉरवर्ड कर देगा? कंसर्न समझ में आया? कंसर्न समझ में आया? कंसर्न समझ में आया सबको? सबको पक्का? अरिश्योर? अरिश्योर मतलब अरिश्योर। मैं क्या कह रहा हूं, मेरा जो आईएसटी बीपीडीयू दूसरे रीजन से आ रहा है, देखो अब ना कंसर्न थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक रीजन में लूप प्रिवेंट हो चुकी है, इस रीजन में भी लूप प्रिवेंट हो चुकी है, इस रीजन में भी लूप प्रिवेंट हो चुकी है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर, हम इंटर रीजन लूप को क्या करना चाहते हैं? प्रिवेंट। क्लियर? कंसर्न क्लियर हुआ? एक रीजन से आईएसटी बीपीडीयू आया, रीजन 1 इज फॉरवर्डिंग आईएसटी बीपीडीयू टू रीजन 3. रीजन 3 will tunnel that BPDU across its own region. अपने ही रीजन से उस बीपीडीयू क्या कर देगा? टनल। क्योंकि रीजन के अंदर उस बीपीडीयू का कोई काम नहीं, क्योंकि वो लूप कौन सी प्रिवेंट कर रहा है? इंटर रीजन। कैसी प्रिवेंट कर रहा है? तो मुझे तो सिर्फ क्या करना है, उस बीपीडीयू को अपने रीजन से पास करवाना है। क्या करवाना है? पास। एग्री? वो बीपीडीयू पास हुआ और एफ ने किसको फॉरवर्ड कर दिया? किसको फॉरवर्ड कर दिया? वैसे ही डी के पास बीपीडीयू सी से भी आया होगा। यस और नो? यस और नो? इतनी बात समझ में आई कि आईएसटी 0 वाला बीपीडीयू जो दूसरे रीजन से आ रहा है, आईएसटी 0 बीपीडीयू व्हिच आई एम रिसीविंग फ्रॉम द अदर रीजन, देयर इज नो यूज ऑफ दैट बीपीडीयू इन माय रीजन, सो आई हैव टू टनल टू अनदर रीजन इफ आई एम कनेक्टेड, इफ आई एम कनेक्टेड। इतनी बात समझ में आई सबको? अगली बात पे आता हूं। In region 2 and in region 3 we are running instance 0. There will be a root bridge for instance 0. Region 3 में कौन root bridge होगा? E. Region 2 में कौन होगा? D. C. Agree? ये अपने रूट होंगे अपने रीजन्स के। लेकिन मैंने एक बात और कही अभी थोड़ी देर पहले कि आईएसटी बीपीडीयू पूरा ट्रेवल कर रहा है हर रीजन में, तो एक क्या इलेक्ट होगा? रूट। वो रूट कौन है? ए, जो रीजन 1 में एग्जिस्ट करता है, जो आईएसटी 0 बीपीडीयू जनरेट कर रहा है। ये सुन लो, अब दूसरे रीजन के स्विचेस अपने आप ही क्या करेंगे? अपने बाउंड्री स्विचेस को अपने रूट ब्रिज बना लेंगे, क्योंकि वही डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं बीपीडीयू रीजन 1 से। कहां से? मैं क्या कह रहा हूं, रीजन 2 और 3 में बेशक ये मैक एड्रेस ई इधर होता, ये एफ इधर होता, इस इंस्टेंस 0 के लिए रूट कौन बनता? कौन बनता? हमेशा बाउंड्री स्विच। ये लॉजिक है। ये क्या है? लॉजिक। ये क्या है? लॉजिक। क्यों? रीजन, क्योंकि अंदर वाला स्विच तो अभी आईएसटी बीपीडीयू समझेगा ही नहीं भाई, समझेगा ही नहीं। क्यों? वो कौन सा बीपीडीयू समझेगा? एमएसटी एक्सटेंशन वाला। एग्री? पूछो सर। जैसे रीजन 2 है, हाँ, ये भी अपना इंस्टेंस 0 भेज सकता है बजाय रीजन 1 के। हाँ यार भेज सकता है। तो एफ भी तो ऐसे ही बाउंड्री पर आ गया, मतलब जैसा ई है रीजन 1 के लिए बाउंड्री, और ऐसे एफ भी हो सकता है। मगर अगर इन दोनों के बीच में एक स्विच हो, जैसे 3 स्विच हो, उस केस में बीच वाला नहीं बनेगा। वरना जो बाउंड्री में, तो अगर ये इंस्टेंस रीजन 2 का भी आ रहा है 0, तो एफ भी तो बाउंड्री पे है। रीजन मैं एक मिनट यार, अभी अगर मैं ये कह दूं कि रूट ब्रिज होने इलेक्ट होने का क्राइटेरिया ब्रिज आईडी है ही नहीं, फिर हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बाउंड्री पे तो दोनों। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ ना, जो हमारा रूट ब्रिज इलेक्ट होने का क्राइटेरिया, ये बाउंड्री पे रूट ब्रिज इलेक्ट हो रहा है ना, ये ब्रिज आईडी पे इलेक्ट नहीं होगा, ये एक्सटर्नल पाथ कॉस्ट पे इलेक्ट होगा। ठीक है भाई, तो क्राइटेरिया ही चेंज हो गया। हाँ, इस केस में आपने इंस्टेंस 0 के लिए आपने स्विच ए को रेफरेंस एज अ रेफरेंस यूज किया। अगर हम वहाँ से रीजन 3 से अगर हम ले इसको, तो उस
उस केस में क्या होगा? उस केस में तो फिर एक बात बताओ यार, मैंने अपना केस एक बार भी अभी पूरा नहीं किया, आप मेरे को आगे का प्रोसेस समझा सकते हो? मतलब आप मेरी बात को पैरेलली समझ रहे हो? ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मेरे को एक बार बात को कंप्लीट करने दो, अगर आपको बात ना समझ में आए फिर बोल देना। हाँ 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा यार, फिर मेरे भी तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं पूछ लूंगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था, जब भी इंटर रीजन कम्युनिकेशन होगा, स्विच ए अपना IST इंस्टेंस 0 BPDU भेजेगा, वो ई के पास आएगा। ई किसको देगा? एफ को। अब हर रीजन अपने एज स्विच को क्या बनाना चाहेगा? इंस्टेंस 0 के लिए क्या? रूट ब्रिज। और किस बेसिस पे? कॉस्ट को कंपेयर करके। किसको कंपेयर करके? अब देखो, कल याद है मैंने कॉस्ट दिखाई थी 0 थी, याद आई? वो 0 क्यों थी? हम कॉस्ट यहां से यहां देख रहे थे, और वो कॉस्ट क्या होती है? एक्सटर्नल कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? एक्सटर्नल। याद है जैसे मैंने 2 रीजन बना दिए थे, कॉस्ट 2 लाख हो गई थी। कॉस्ट क्या हो गई थी? 2 लाख। जिन लोगों को याद है, जिन लोगों ने कल घर जाके देखा होगा, उनको याद होगा। और अब अगर मैं स्विच ई पे आगे कॉस्ट देखूंगा, यहां तक जाने की कितनी दिखेगी? 2 लाख। कितनी दिखेगी? 2 लाख। सी पे आगे भी देखूंगा, कितनी दिखेगी? 2 लाख। ट्रायंगल बन गया ना ये। थिंक इट लाइक दिस। 1 मिनट रुक जाओ बस। ये टोपोलॉजी अब ऐसी हो गई कुछ, ठीक है जी। ये डीपी बन गया मेरा बोर्ड, ये भी डीपी बन गया। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? आरपी। अब इनमें से एक डीपी बन जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? ब्लॉक। इंटर रीजन लूप क्या हो गई? प्रिवेंट विद द हेल्प ऑफ व्हिच बीपीडीयू? IST बीपीडीयू। विद द हेल्प ऑफ व्हिच बीपीडीयू? और फिर बता देता हूं, जिसमें इंस्टेंस 0 का, in the region in which we already have instance 0 root bridge, all other regions will decide instance 0 root bridge on the basis of external path cost. On the basis of external path cost. अभी मैंने एक केस लिया जिसमें एक ही स्विच रूट ब्रिज तक पहुंच सकता है। अभी ऐसा भी केस ले लूंगा जिसमें 2 एज स्विच हैं, फिर ऐसा भी केस ले सकते हैं जिसमें एज स्विच कितने होंगे? तो रूट ब्रिज कौन सा बनेगा? एग्री? तभी तो लॉजिक आएगा ना। देखो, मैं सिंपल अपने ऊपर वाले एग्जांपल पे जाता हूं, इस टोपोलॉजी को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। स्विच डी मान ले इसको, कुछ इसको डी डैश मान ले। ऐसे भी तो हो सकती है टोपोलॉजी। अब कौन सा एज स्विच रूट ब्रिज बनता है? बी। अब कॉस्ट भी सेम है, तो फिर वो ब्रिज आईडी पे आएगी बात। अब पहले क्या देखूंगा? कॉस्ट। फिर क्या देखूंगा? ब्रिज आईडी। सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉस्ट। इन अ रीजन इन विच IST इंस्टेंस 0 रूट ब्रिज इज नॉट लोकेटेड, व्हाट वी विल डू? वी विल, or MST will try to configure edge switch as root bridge, because edge switch is the only switch which will be able to understand MST BPDUs or instance 0 BPDUs. Internal switches will never understand instance 0 BPDUs. Why? Because those BPDUs do not have MST extension. और अगर होती भी तो भी वो ना समझते। क्यों? कॉन्फ़िगरेशन डाइजेस्ट क्या होता? अलग। कॉन्फ़िगरेशन डाइजेस्ट क्या होता? अलग। ठीक है जी। अब इन दोनों में से इंस्टेंस 0 के लिए रूट ब्रिज किसको बना लेगा? डी को। किसको बना लेगा? लेकिन पहला डिसीजन किसके बेसिस पे होगा? कॉस्ट के बेसिस पे। अब पूछो अपना क्वेश्चन, क्या पूछना चाहते हैं? जैसे भी आपने इंस्टेंस 0 के लिए आपने स्विच 1 को एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज किया हुआ है। अगर मैं ये वहां से लूं, रीजन 3 में जो मेरा स्विच 3 अगर मेरा बन जाएगा रूट ब्रिज, उस केस में तो रीजन 1 में स्विच बी बन जाएगा, फिर उस केस में रूट ब्रिज इंस्टेंस 0 3 का। कैसे? नहीं, अभी आपने जो मतलब तू ऐसा कह रहा है कि ए, बी और सी 3 स्विच हैं, अगर मैं सी के रेफरेंस से लूं रूट ब्रिज अलग आएगा, ए के रेफरेंस से लूं रूट ब्रिज अलग आएगा। क्यों है? सच में कैसे गजरों वाली बात कर रहा है? डाउट है ना मेरा यार। फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं इस चीज को इसके रेफरेंस से समझाऊं, मतलब आप ये चाह रहे हो? समझ ले, ये स्विच अपना IST BPDU फॉरवर्ड करेगा, इंस्टेंस 0 का BPDU, ये इधर भी आएगा, ये भी तो अपना इंस्टेंस 0 का BPDU फॉरवर्ड करेगा। कंपेयर होगा, बेस्ट किसका होगा? ए वाले का। तो सामने वाला सेंड करेगा ही। पहले वो कंपेयर होगा, उसके बाद फिर करेगा। कैसी बात कर दी यार। मतलब जिसके रेफरेंस से स्टार्ट करूंगा वो रूट ब्रिज बन जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा यार।
मैंने क्या बात कही थी, सबसे पहले बीपीडीयू एमएसटी एक्सटेंशन के साथ जाएगा, उसको ये भी नहीं पता होगा मैं बाउंड्री पे हूं, तो जब एमएसटी एक्सटेंशन के साथ जा रहा है मेरे इंस्टेंस जीरो की इंफॉर्मेशन जा रही है उसमें, ठीक है भाई। इंस्टेंस जीरो की इंफॉर्मेशन मतलब मेरे पूरे एमएसटी रीजन में बेस्ट कौन है उसकी इंफॉर्मेशन इंस्टेंस जीरो के लिए। सामने वाला भी यही काम करेगा, भिड़े दोनों, बाउंड्री है, पता चला, कंपेयर हो गए बैक एड्रेसेस। क्या कंपेयर हो गए? स्पैनिंग ट्री में पहला रूल बताया था, कभी सीसीएनपी क्लास में सुनाओ कि जैसे स्विच को पता चल जाता है ना सामने वाला रूट ब्रिज है, वो बीपीडीयू सेंड नहीं करता, या फिर जैसे ही सामने वाले को पता चल जाता है तू मैं सुपीरियर नहीं हूं, सामने वाला क्या है सुपीरियर, वो बीपीडीयू फॉरवर्ड नहीं करता। यही तो बात यहाँ हुई। ये रीजन अपना बेस्ट फॉरवर्ड करेगा, ये रीजन अपना बेस्ट फॉरवर्ड करेगा, पता चल जाएगा ना इस रीजन को कि बेस्ट कहाँ है, पापा कहाँ बैठे हैं, या तो वो फॉरवर्ड नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, रिसीव। देखो फिर बोल रहा हूं, इस प्रोसेस को सिर्फ इतना ही समझ लो। अब वीलन वाली बात पे आऊंगा कि भाई यहां पे तो इंस्टेंस जीरो में वीलन अलग है, यहां पे इंस्टेंस जीरो में वीलन अलग है, और यहां पे इंस्टेंस जीरो में वीलन अलग है। अब बताता हूं इन तीनों between or among these three regions we are running CST now. Which protocol we are running? CST. Convergence will be according to CST. It means now we have a drawback. Now we have a drawback that if there is any change between regions, it will take again 30 seconds to or 30 to 50 seconds to reconverge. 30 to 50 seconds. But there is the advantage also. If there is a change in single region, that will not impact other regions. That will not impact other regions. As we have a drawback, we have a advantage also. What is the advantage? Topology change in one region will be independent of topology change in another region. And what is the disadvantage between regions? Which protocol we are actually running? CST. What do you mean by CST? Common spanning tree. Common spanning tree means one instance for all the VLANs. So between regions there will be no problem for communicating in different VLANs because there will be a single instance. Because there will be a single instance. इन रीजन्स के बीच में हमने सीएसटी चलाया हुआ है। क्या चलाया हुआ है? सीएसटी। सीएसटी क्या कहता है? सारी वीलेंस के लिए एक इंस्टेंस बनेगा। तो भाई वीलेन का तो कोई लोचा है ही नहीं। अब एक बात बताओ, मैंने अपने रीजन से बाहर बीपीडीयू कौन सा भेजा था? इंस्टेंस जीरो का। उसमें कुछ वीलेन की इंफॉर्मेशन थी? फिर कोई वीलेन का लोचा है ही नहीं, कोई वीलेन का लोचा। अब इस रीजन में जो यूजर्स हैं वो अपनी लॉजिकल टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करेंगे। इस रीजन से इस रीजन का कम्युनिकेशन ऐसे होगा, इस रीजन से उस रीजन का कम्युनिकेशन ऐसे होगा। वो लिंक तो हमेशा क्या रहेगा? ब्लॉक। सर सीएसटी बीपीडीयू केवल सीएसटी को ही पड़ेगा और अगर बीपीडीयू हुआ अगर पीवीएसटी तो वो कैसे? भाई मैंने तो पीवीएसटी की बात नहीं की अभी, ना मैंने बात की कि एमएसटी पीवीएसटी प्लस से कैसे बात करेगा। अभी हम बात कर रहे हैं एमएसटी इंटर रीजन ऑपरेशन कैसे होगा। तो एमएसटी इंटर रीजन ऑपरेशन करवाने के लिए कौन सा बीपीडीयू रिस्पॉन्सिबल है? आईएसटी इंस्टेंस जीरो। फिर बता रहा हूं, अपने रीजन से बाहर जैसे ही बीपीडीयू जाता है एमएसटी एक्सटेंशन को क्या कर देता है? रिमूव। दूसरे रीजन के स्विचेस दूसरे रीजन में पहले से ही हमारे पास इंस्टेंस जीरो के लिए रूट होता है, लेकिन जैसे उनके पास दूसरे रीजन से इंस्टेंस जीरो का बीपीडीयू आता है, दे ट्राई टू कॉन्फ़िगर एज switch as root bridge. First of all, on the basis of external path cost. What do you mean by external path cost? Cost between regions. Cost between regions. In which we will never count internal cost. In which we will never count external cost means just the cost between regions. Clear? अब let's say यार ऐसा भी हो सकता था, ये लिंक 1 GBps होता, ये लिंक, अब कौन सा बनता? अभी ना बनता रूट ब्रिज। अब कौन सा रूट ब्रिज बनता? बिकॉज ऑफ लेस एक्सटर्नल पाथ। ऑल ऑफ यू प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, एज बैंडविड्थ विल इंक्रीज कॉस्ट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। कॉस्ट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। दिस थिंग इज क्लियर?
भाई इतना समझ में आया कि एमएसटी का इंटर रीजन कम्युनिकेशन कैसे होगा। भाई विजिबल है नहीं? अब चलो फिर पढ़ लेते हैं इसके ऊपर 3-4 पॉइंट है, आपके पास हो भी जाएंगे कभी पढ़ने हुए तो। The concept of CIST. As you remember, every MSTP region runs special instance of spanning tree known as instance 0. This instance is active on and serves the purpose of disseminating STP topology information of other STP instances. As usual, IST has a root bridge elected based on the. However, situation changes when you have different region का मतलब क्या बताया उसने? Switches with different and different. When a switch detects a BPDU message sourced from, it marks the link as. ठीक है भाई, पता कैसे चलता है? कॉन्फ़िगरेशन डाइजेस्ट से पता कैसे चलता है? अब क्या बोल रहा है, पढ़ो इसकी बात। पहली बात, नाउ 2 रीजन शुड बिल्ड अ, ठीक है ये छोड़ दो। देखो पहला पॉइंट, इन एडिशन टू सेंडिंग IST कॉन्फ़िगरेशन BPDU, every switch initially declare itself as. The switch pass the CSTI configuration information along with in the यही है वो BPDU fields। भाई कह रहा है देखो यहां भी देखो यार, ये देखो इधर देखो, यहां भी है CIST की इंफॉर्मेशन दिख रही है और MST इंस्टेंस 5 की भी है, लेकिन साथ ही साथ यहां भी फॉरवर्ड हो रही है, दिख रही है मेन BPDU में। किसमें? मेन BPDU में। स्विचेस इनसाइड अ रीजन नेवर चेंज पाथ कॉस्ट टू, यही दिखाया था कल आपको, 0 थी पाथ कॉस्ट, नोन एज। Instead of that, the external path cost changes on the boundary ports. Thus, this external cost only accounts the cost of, not the cost of. On boundary ports, which is exchange there.
CIST BPDUs ओनली भी लिख सकता था वो, उसने इंफॉर्मेशन ओनली लिखा, इसका मतलब क्या है? विदाउट MST एक्सटेंशन, दैट इज स्विच हाइड IST इंफॉर्मेशन बिटवीन बट पासेज CIST मेट्रिक। ये अब बता रहा है कि RSTP नॉर्मल सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस विल बी देयर। बताता हूं अब आपको। देखो, द रीजन दैट कंटेन्स द डिक्लेयर द स्विच एज द रूट फॉर, अपने लोकल IST इंस्टेंस 0 के लिए भी रूट बना देगा उसको। हाउएवर थिंग्स स्टार्ट टू डिफर फॉर रीजन दैट डोंट कंटेन द, all of them elect one of the border switch as this procedure elect IST route based on the lowest CIST external route path cost। clear भाई? note that this procedure differs from the election based purely on bridge ID। now अगली बात वो यही लिखेगा, अगर कॉस्ट टाई हो जाएगी तो कंपेयर किसको करेंगे? ब्रिज आईडी। if cost is same then we will compare bridge ID। तो ये बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। दिस इज हाउ इंटर रीजन MST ऑपरेशंस विल अकर। अब बात आता है कि यार MST CST के साथ कैसे बात करेगा, MST PVST प्लस के साथ कैसे बात करेगा। यार मेरे अकॉर्डिंग ये बातें पता होनी जरूरी नहीं है, आप छोड़ सकते हो इन चीजों को। इफ यू आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग MST इंटर रीजन एंड इंट्रा रीजन कम्युनिकेशन, दैट्स ऑल फॉर यू, ठीक है जी। अब एक बात और बोल रहा हूं, आज जाना घर पे, एक बार ना PVST के प्लस के साथ बुक में कम्युनिकेशन समझा रखी है, उसको देख लेना, पढ़ना मत, देख लेना एक बार। अगर आपको लगेगा हम कल डिस्कस कर लेंगे, वरना छोड़ देंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज इसमें, अगर रूट ब्रिज मेरा फेल हो जाए, रीजन 1 में है और सेकंड हाईएस्ट, यार ब्रो देखो, अब एक बात बताओ, आप मेरा कंसर्न समझो। आप ना इसको अलग अलग रीजन लेके चल रहे हो, तभी आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। मैं एक रीजन को एक स्विच मान रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये, नॉर्मल केस में भी तो रूट ब्रिज फेल हो सकता है, इस केस में क्या दिक्कत आएगी? तो वही मैं पूछ रहा था, अगर दूसरा जो मेरा बेस्ट होता है वो अगर रीजन 3 में होता है तो उसमें फिर दोबारा इलेक्शन होगा? भाई बिल्कुल यार, देख जो इसमें टाइमर्स चलेंगे ना इंटर रीजन में, वो टाइमर्स किसके होंगे? CST के। आपने देखा भी होगा, कल मैं जब शो स्पैनिंग ट्री MST 0 कमांड चला रहा था, फॉरवर्ड डिले टाइमर लिखा हुआ था, मैक्स एज टाइमर लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ था? CST टाइमर्स हैं वो, दोज आर CST टाइमर्स दैट विल बी इन वर्किंग स्टेट व्हेन यू आर यूजिंग इंटर रीजन, क्लियर भाई? तो प्लीज इसको घर जाके एक बार पढ़ना, वरना ये समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें हैं अभी तो होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। मैं अपने अगले टॉपिक पे आ रहा हूं। मेरा अब लेयर 2 में क्या क्या टॉपिक रहते हैं बता देता हूं आपको। स्पैन, ER स्पैन, मेरा लेयर 2 क्या हो जाएगा? कंप्लीट, ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्पैन, R स्पैन और ER स्पैन। प्रैक्टिकल करा दूंगा अभी इनको डिस्कस करने के बाद। स्पैन स्टैंड्स फॉर स्विच पोर्ट SPAN stands for switch port analyzer।
चूहे मारने की दवाई। हाँ जी, क्या लिखा हमने? स्विच पोर्ट एनालाइजर व्हेन यू वांट टू रेप्लिकेट ट्रैफिक ऑफ वन स्विच पोर्ट और अ ग्रुप ऑफ स्विच पोर्ट टू पोर्ट ऑफ सेम स्विच। टाइमिंग इतना जबरदस्त है। आप कस्टमर केयर कॉल करते हो, वहां पे बोला जाता है आपकी कॉल क्वालिटी पर्पस के लिए, प्रतीक्षा में तो है आपकी कॉल क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। पता नहीं कौन सा क्वालिटी पर्पस होता है। तो लेट्स से ये सारे यूजर्स बैठे हैं अपना आईपी फोन लेके, तो हम क्या करते हैं, इन सब पोर्ट्स का ट्रैफिक रेप्लिकेट कर देते हैं इस अकेले पोर्ट पे। यहाँ हमने क्या रख रखा होता है, वॉइस सर्वर, जहाँ पे सारी कॉल्स क्या हो जाती हैं जाके रिकॉर्ड। क्लियर? सो इन दिस केस द मेन वर्क इज डन बाय स्विच। स्विच को करना क्या है, जो उसके पोर्ट्स पे ट्रैफिक सेंड और रिसीव हो रहा है उनको रेप्लिकेट करना है एक अलग पोर्ट पे। क्लियर? उनको रेप्लिकेट करना है एक अलग पोर्ट पे। This particular technology is called span. Clear? Span means we are actually basically monitoring sessions. Clear भाई? चले आगे। Now guys, span source. What things you can configure as span source? You can configure a single port as span source. You can configure a VLAN as span source. VLAN means मेरा कंसर्न समझो, सब लोग सुनो मेरी बात। What I am trying to tell you, which ports, for which ports you want to capture the traffic. आपको किन पोर्ट्स के लिए ट्रैफिक को कैप्चर करना है? फिर बोलूं, आपको किन पोर्ट्स के लिए ट्रैफिक को कैप्चर करना है? That will be your span source. That will be your span source. You can define span source using a port number or by using a VLAN. VLANs means all ports belonging to that, or it can be layer 3. Okay, layer 3 port on switch. Clear? It can be a layer 3 port on a switch, or it can be a port channel interface, or it can be a member port of port channel interface. It can be a member port of port channel interface. Done. पोर्ट मिररिंग क्या है? यही है। हाँ जी, The same thing is called port mirroring. बताओ, कुछ पूछना चाहते हो तो? Source cannot be a SVI. Source cannot be a SVI. SVI, you know, switch virtual interface.
क्लियर भाई? समझ में आई इतनी बात सबको? क्लियर? So source can be a port, source can be a VLAN, source can be a layer 3 port on a switch, source can be a port channel interface, source can be a member of port channel interface, but source cannot be a SPI. Destination in case of span is always a single port. Destination हमेशा क्या होगा? देखो आप क्या करते हो जब सोर्स डिफाइन करते हो ना, एक सेशन डिफाइन करते हो. Whenever you are defining span source on the switch, actually you are defining it by using a session number. You are defining it by using a for a single session there can be a single destination. For a single session there can be a single destination. For two different sessions you cannot configure same destination. For two different sessions also you cannot configure same destination. अब मैंने भाई एक सेशन बनाया VLAN 5 के लिए, एक सेशन बनाया VLAN 6 के लिए, उसके लिए डेस्टिनेशन पोर्ट अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं हो सकता. उसके लिए डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए. सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट होना. चले भाई आगे. इतना समझ में आया? सबको क्लियर है बात? नाउ बाय डिफॉल्ट वी हैव कॉन्फ़िगर्ड अ स्विच पोर्ट एज डेस्टिनेशन पोर्ट. हमने स्विच पोर्ट को क्या बना दिया? डेस्टिनेशन पोर्ट. Now guys, try to understand one thing, that destination port is only allowed to receive traffic from the switch. वो destination port by default सिर्फ traffic को क्या कर पाएगा? Receive. कभी भी नेटवर्क में अपना ट्रैफिक जनरेट नहीं कर पाएगा. That destination port is never allowed to generate its own traffic into the network by default. The port you are configuring as span destination port is never allowed to send traffic back into the network. It is only allowed to receive traffic. Clear? ये functioning by default क्या होती है? बंद. क्यों? यार मैं जब span चला रहा हूँ इसका मतलब मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ. मैं जब डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ मैं सेम पोर्ट से डेटा सेंड क्यों करूंगा? Now you are saying you have a requirement that turn that on, turn that feature on. उस फीचर को क्या कर लो? ऑन कर लो. अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप स्पैन डेस्टिनेशन पोर्ट से ट्रैफिक फॉरवर्ड करवाना चाहते हो तो आप उस फीचर को क्या कर सकते हो? ऑन. क्या कर सकते हो? ऑन. इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी. तो बाय डिफॉल्ट स्पैन डेस्टिनेशन पोर्ट सिर्फ ट्रैफिक को क्या करता है? रिसीव. नेटवर्क में वापस फॉरवर्ड. It will not forward traffic into the network or to the switch. It can only receive traffic from the switch. डायग्राम दिख रहा है? ये यूजर इस यूजर से बात कर रहा है. हम सारा ट्रैफिक किस पे भिजवा रहे हैं? इस एनालाइजर पे. किस पे फॉरवर्ड करा रहे हैं? एनालाइजर पे. किस पे फॉरवर्ड करा रहे हैं? ठीक है भाई. हाँ क्या लिखा हुआ है? ये विजिबल है? रुको ना एक मिनट. नहीं है विजिबल तो क्या हो गया? कॉपी का ऑप्शन का है.
बढ़िया भाई तू सौरभ, बहुत बात करता तू। The span source can be identified as one or more physical switch ports on the switch. The ports can belong to the same VLAN or different VLANs. In addition, a trunk port can be used as a span source, causing traffic from all VLANs that are active on the trunk to be copied to the span destination. भाई इतनी बात समझ में आ गई सबको? Span source can be a normal physical port, it can be a VLAN, it can be a trunk port also. When you are configuring span source as your trunk port, so all the VLANs that are allowed on the trunk, for all those VLAN traffic will be captured. Clear? Next thing. You can apply a VLAN filter to the span source to limit which VLAN will be monitored. अब एक बात बताओ, ट्रंक पे सारी VLANs allowed है 1 to लेके 4094, but on trunk port you want to capture traffic only for VLAN 10, so you can filter their VLANs also. You can filter their. Clear? बात समझ में आ गई सबको? होप सो। हाँ भाई अगला पढ़। A span source can also be a switch port that is a member of an ether channel. क्लियर? ये बात समझ में आई? नेक्स्ट। In this case, only traffic passing over that physical port in the ether channel will be copied to the span destination, allowing you to monitor a single link in the channel. To monitor all traffic passing across an entire ether channel, you can identify a port channel interface as the span source. पोर्ट चैनल इंटरफेस को भी आप क्या बना सकते हो? स्पैन सोर्स। बता दिया आपको? आलोक To monitor traffic passing within one or more VLANs. यार एक मिनट यार। To monitor traffic passing within one or more VLANs on the switch, you can identify the VLANs as the span source. This is essentially the same as local span, but is often called VLAN-based span or VS. कह रहा है जब आप सोर्स में VLAN डिफाइन कर देते हो, क्या डिफाइन कर देते हो? VLAN। क्या इस VLAN को भाई सोर्स बना दिया मैंने, उस केस में स्पैन V स्पैन कहलाता है। We pronounce span as V span whenever we are using VLAN as source। अभी बताऊंगा, एक प्रॉब्लम भी आएगी। हाँ बताओ, कुछ क्वेश्चन है आपका? चलो पूछो, चल भाई पढ़ आगे। All switch ports that are active on a source VLAN become source themselves. बात समझ में आ गई? जितने पोर्ट उस VLAN के मेंबर होंगे सारे सोर्स बन जाएंगे अपने आप, है गिरी? हाँ। The destination. अब डेस्टिनेशन पे आ गया, ये किस पे आ गया? अब पढ़ो। The destination is identified as a physical interface located on the same switch as the source. Frames. अब डेस्टिनेशन सेम स्विच पे होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए? Frames that are copied or mirrored from span source are copied into the span destination ports egress queue, because the frames are merely copied within the original data is not affected and still forwarded. तो ओरिजिनल डेटा कभी भी इफेक्ट नहीं होता। बट वेन एवर यू आर यूजिंग स्पैन, कीप दिस थिंग इन माइंड, यू आर बर्डनिंग द स्विच। आप स्विच के काम को क्या कर रहे हो? बर्डन, इंक्रीज कर रहे हो। स्विच के काम को क्या कर रहे हो? बिकॉज दिस टाइम स्विच हैज टू फॉरवर्ड द सेम ट्रैफिक ऑल्सो एंड स्विच हैज टू कॉपी द सेम ट्रैफिक टू अ पर्टिकुलर पोर्ट। ओके, लेट्स से स्विच रिसीव्स ट्रैफिक ऑन पोर्ट नंबर 1. Destination port is port number 4, but span destination port is port number 5. So Swiss this time has to replicate traffic on 2 ports, on port number 4 also and 5. Concern is clear? बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन है मेरा, जो ये अगला पॉइंट डिस्कस करेगा भाई मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि अब स्पैन पढ़ा दिया तो आर स्पैन भी हो ही गया, लगा लो लगभग 2 मिनट लगे। Whenever we are configuring span, actually in real time scenario people forget one thing. लोग एक बात को भूल जाते हैं, वो क्या है? Let's say I have configured VLAN as source, clear, and I am having a 48 port switch. कितने पोर्ट का स्विच है? 48. Agree? कितने पोर्ट का स्विच है? And let's say 5 ports are member of VLAN 10. कितने ports member हैं? 5 ports. And I am using VLAN as source.
So how many ports are source now? 5. दोबारा बताऊं? मैंने क्या बोला? एक स्विच 48 पोर्ट्स बचा है मेरे पास. फाइन. मेरे पास उस पे 48 पोर्ट्स हैं और मैं सोर्स क्या यूज कर रहा हूं? व्हाट सोर्स आई एम यूजिंग? अ VLAN. VLAN 5. Fine. And I have 5 ports in VLAN 5. So how many ports are my source now? 5 ports. Now I will configure one port as destination. All ports are of same Ethernet standard. It means total bandwidth present for the source port is 500 Mbps and total bandwidth available for the destination port is 100 Mbps. If these 5 ports are fully utilized, there can be a chance they are not able to send traffic to my destination. Why? भाई देखो यहाँ कितना ट्रैफिक हो जाएगा? 500 MB और उसकी कैपेसिटी सिर्फ कितनी है? 100 MB. तो इसका भी आपको क्या रखना है? ध्यान. इसका भी आपको क्या रखना है? ध्यान. क्लियर? तभी लोग एक स्विच पे मल्टीपल स्पैन सेशंस बनाते हैं. That's why people used to configure multiple span session on the same switch. Why? Because there can be a chance input is greater than output. Input is greater than, and what we want, output must be greater than input. कंजेशन हो जाएगी वरना. कॉपी ये भी पढ़ लो यार एक बार, और क्या 2 मिनट लगेंगे. कौन पढ़ेगा? चंदन पढ़ दे यार. What happens if the span ports and the destination ports are operating at different speeds? This easily could happen if the source is a VLAN with many hosts, or if the source is a 10 gigabit Ethernet port and the destination is a gigabit Ethernet port. Mirrored frames are copied into the destination port egress queue, and if normal layers two switching heads decide to forward them there, if the destination port becomes congested, the mirrored frame might be dropped from the queue and not transmitted out the destination port. Therefore, if the bandwidth of span source traffic exceeds that of the span, the destination port, some mirrored traffic might not be seen in the destination port. कुछ आया समझ में? है? आ गया? मुश्किल तो नहीं था? अब ये भी मुश्किल है, फिर कुछ आसान नहीं है यहाँ पे. ठीक है जी. तो ये आपके पढ़ने के लिए था बेसिकली. और कुछ बातें बता देता हूँ स्पैन के बारे में. कल तक एक काम करना, अपनी बुक में देखा ना, और भी कोई लेयर 2 का टॉपिक बचा हो तो ले आना, कल खत्म कर दूंगा लेयर 2 बिल्कुल. आज कोई प्रैक्टिकल रह जाएगा वो भी कल ही करवा दूंगा. ठीक है भाई? अपनी पूरी बुक चेक कर लेना, सिलेबस चेक कर लेना, कोई टॉपिक रह गया तो मुझे बता देना, हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है भाई? IGMP ब्रो मल्टीकास्टिंग के साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है भाई? मैं यही सोच रहा हूं कि परसों क्या स्टार्ट कर दूं? मल्टीकास्टिंग. यूनिकास्टिंग तो पढ़ी हुई है सबने. वही स्टैटिक राउटिंग डिफॉल्ट राउट पढ़ के क्या करोगे? मल्टीकास्ट पढ़ेंगे, नया टॉपिक. आई विल सी टू इट. ठीक है जी. तो अब स्पैन की कुछ कॉन्फ़िगरेशन की बातें हैं, देख लेते हैं. हाउ टू परफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ स्पैन. मॉनिटर सेशन. देखो सबसे पहली बात, कमांड्स कहां चलेंगी? कहां चलेंगी? क्या लिखा मैंने? सैंतीस 50 सपोर्ट करता है भाई. ठीक है जी. 35-50 भी करता है वैसे तो.
कर लेना बेटी। चले आगे देखो, हाउ टू स्पैन, हाउ टू कॉन्फ़िगर, डन। कमांड इज monitor session number. After that what thing we have to define? Source. अब source can be a, it can be a, it can be a, done, it can be a, it can be a, done. Any problem? Clear to all of you? सबको समझ में आ रही है इतनी बात? चेक कर लो यहाँ। You can configure one or more span session on a catalyst switch. The number of supported span session depends on the switch model. 3750X can support up to. Each span is completely independent because there is no interaction between. ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं? मॉनिटर सेशन नंबर, सोर्स, फाइन। आफ्टर दैट इंटरफेस, व्हाट थिंग यू वांट टू यूज एज सोर्स। इतनी चीजें हो सकती हैं सोर्स में। उसके बाद क्या डिफाइन करते हो आप? क्या डिफाइन करते हो? डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक कैन बी RX received traffic, TX transmitted traffic और both. अब एक बात बता देता हूं, the traffic the user is sending, switch is actually receiving. हम परस्पेक्टिव ट्रैफिक से किसका लेते हैं? यूजर का, कि भाई यूजर सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है। वी हैव टू switch is sending और receiving, switch is sending और receiving. Clear? ये लाइन पढ़ना कितने लोग चाहेंगे? The span source must be a physical switch interface or a layer 2 VLAN, not a logical SVI. Clear? However, you cannot mix both interfaces and VLAN in the instant. Instead you have to create a different span or separate span sessions. Clear? Traffic can be selected for mirrored both based on the direction it is traveling through the. You can select any traffic received on the source by using which keyword? Only traffic transmitted from the source by which keyword? And both by using both. By default, both directions are used. Clear भाई? तो ये जो RX और TX है, this is direction according to the switch, not according to the user. Clear? अब अगली बात क्या कह रहा है? Identify span destinations. तो source define कर दिया. Next we have to define monitor session number, destination will always be a physical interface. Clear? You can define only, पहला पॉइंट यही बताया था, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, in addition different span sessions cannot share a common destination. For different span sessions you cannot have same destination. ये पॉइंट भी एक्सप्लेन किया था आपको. The destination must be a not a SVI. Clear? बताई थी ये बात भी. अब ये पढ़ लो बस, ये दो पैराग्राफ और खत्म. स्पैन क्या कहता है, ये क्या कह रहा है? ऑन स्पैन डेस्टिनेशन पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट all layer 2 protocols will be disabled.
On span destination ports, by default all layer 2 protocols will be disabled, like STP, CDP, VTP, DTP, PHEP. All these protocols will be disabled on span which port? Destination. If you want to enable these features, you can add encapsulation replicate keyword. Which keyword? Encapsulation replicate. पढ़ो. Span normally copies packet to the destination port without any. अब लोग क्या कोशिश करते हैं? ट्रंक पोर्ट पे कैप्चरिंग लगा देते हैं. भाई वीलेन टैग दिखेगा, वीलेन टैग दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि पहली लाइन ही क्या लिखी हुई है कि स्पैन कभी भी वीलेन टैग को कैप्चर नहीं करता. स्पैन कभी भी वीलेन टैग को कैप्चर, रीजन है उसका, ट्रैफिक इंटरफेस पे रिसीव होता है, रिसीव होने से पहले टैग क्या हो जाता है? रिमूव. टैग क्या हो जाता है? रिमूव. वो एक्चुअली डेटा को कॉपी करता है. स्पैन नॉर्मली कॉपीज पैकेट टू द डेस्टिनेशन विदाउट एनी. As well, span does not normally copy layer 2 protocols that are sent by the switch itself. Example including spanning tree, BPDU, CDP, VTP, DTP, PHEP. If you want to capture any VLAN tagging information or the layer 2 protocols packets, you can add encapsulation replicate keyword. कौन से कीवर्ड का यूज करोगे? ये कहाँ ऐड होगा? ये कहाँ ऐड करनी है आपको कमांड? यहां क्या लिख दोगे? एनकैप्सुलेशन रेप्लिकेट. डेस्टिनेशन, विद द डेस्टिनेशन कीवर्ड यू विल डिफाइन एनकैप्सुलेशन रेप्लिकेट. नेक्स्ट, बी अवेयर दैट स्पैन डेस्टिनेशन इंटरफेस कैन ओनली ट्रांसमिट मॉनिटर ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट. एनी फ्रेम्स दैट आर सेंट इनटू द आर सिंपली ड्रॉप. तो ये भी आप करवा सकते हो बाय यूजिंग विच कीवर्ड? इनग्रेस. By using which keyword? Ingress. Last, if span source is you might want to mirror only traffic from specific VLANs on the trunk. You can specify a list of VLANs with the global configuration command: monitor session number, filter VLAN reach. By this command you can filter VLANs for which VLANs you want to capture traffic. For which VLANs you want to capture? By default it will be capturing traffic for all allowed VLANs on the trunk. By default it is capturing traffic for all allowed VLANs on the trunk. तो source और destination की कहानी समझ में आ गई? इतनी ही थी भाई. फिर क्या लिखा हुआ है? अब ये लिखा हुआ है, कह रहा है स्पैन डेस्टिनेशन को कभी भी नेटवर्क में वापस कनेक्ट मत करो, क्योंकि क्या फॉर्म हो सकती है? लूप. क्योंकि उस पोर्ट पे एसटीपी क्या होता है? डिसेबल्ड. स्पैनिंग ट्री क्या होता है? डिसेबल्ड. नेक्स्ट टॉपिक,
डन. Done. Look here. Let's say this is my source and this is my. It means this time source and destination are existing on different switch. Agree? So what I will do, I will define source on this switch. Source is port number. Bolo. Source is port number. Span source is port number. Now the thing is, what will be the destination? The thing is, try to understand. Let's say 10.1 किससे बात कर रहा है 10.2 से. Clear? 10.1 किससे बात कर रहा है 10.2 से. तो actual path क्या है ये? Actual path is this for actual traffic. But I want this switch to replicate traffic to switch 3 and switch 3 must forward it to this port. Agree? Agree? ये जो मैं ट्रैफिक रेप्लिकेट करा रहा हूं क्या ये एक्चुअल पाथ है? नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल पाथ फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम स्विच 1 to switch 2. But my span source is on switch 1 and span destination is on switch 3. It means I want to replicate traffic from switch 1 to switch 3. It means the traffic which I am spanning is not the actual path. The traffic which I am spanning here is not following the actual path. भाई जो ट्रैफिक मैं यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ वो कोई ट्रैफिक का ओरिजिनल पाथ थोड़े ना, वो उसका ओरिजिनल पाथ नहीं है. हम क्या करेंगे अब? इन केस ऑफ रिमोट स्पैन वी हैव टू डिफाइन अ रिमोट स्पैन VLAN. वी हैव टू डिफाइन अ रिमोट स्पैन VLAN. व्हाट वी हैव टू डिफाइन? रिमोट स्पैन VLAN. अब देखो लॉजिक समझना बहुत आसान है. क्या समझना है आपको? लॉजिक. मैं ना सारे स्विचेस पे RSpan कॉन्फ़िगर करने से पहले बिफोर कॉन्फ़िगरिंग RSpan आई विल बी कॉन्फ़िगरिंग RSpan VLAN ऑन ऑल द स्विचेस. लेट्स से VLAN. क्लियर? अब मैं क्या करूंगा देखो ध्यान देना. मैं इस बंदे को किस में कॉन्फ़िगर करूंगा? सॉरी किसी में कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा. मैंने RSpan VLAN क्या बना दी? VLAN 100. क्लियर? I will configure source on switch 1 and I will tell switch 1 that destination is VLAN 100. Destination is VLAN 100. Agree? Switch 1 क्या करेगा? Replicated traffic के साथ कौन सा टैग लगाएगा? 100 का. और किसको भेज देगा? 2 को. 2 को दिखेगा 100 के लिए ट्रैफिक आया है और आगे भी फॉरवर्ड कर देगा 100 का ही टैग लगा के. क्लियर? 3 पे क्या करूंगा? 3 पे सोर्स तो डिफाइन कर दूंगा. क्या? कौन सा ट्रैफिक जो किससे बिलोंग कर रहा है? VLAN 100 से. और डेस्टिनेशन क्या डिफाइन कर दूंगा? पोर्ट नंबर 2. पोर्ट नंबर 2. इट मींस हाउ आई एम स्प्रेडिंग माय ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ अ VLAN. हाउ आई एम स्प्रेडिंग माय ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ अ VLAN. With the help of a, I will not be using this VLAN anywhere in my network. Otherwise, traffic will be forwarded to those ports also. Otherwise, traffic will be forwarded to those ports also. Clear? Clear? So, whenever you are configuring remote span, please keep this thing in mind. You have to use a VLAN to spread your traffic from or to send your traffic from source to destination switch. Because in this case, destination and source switch are different switches. Source and destinations are exist on different switches. So how traffic is forwarded from source switch to destination switch? In a VLAN. In a VLAN. That is called RSpan VLAN. That is called RSpan VLAN. So RSpan VLAN you will be manually creating. You will be, or you can also spread it using VTP version 3. You can also spread it using VTP version 3. Clear? मैं VTP version 3 को यूज करके भी RSpan VLAN को क्या कर सकता हूँ? Spread. बात समझ में आ रही है? चले आगे. Are you clear with this thing? अब देखो. What is the logic behind configuring this RSpan VLAN? Logic क्या RSpan VLAN कॉन्फ़िगर करने का? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे को switch 1 से switch 3 पे ट्रैफिक सेंड करना था.
ठीक है, वो कोई एक्चुअल पाथ तो नहीं है ना ट्रैफिक का, वो कोई एक्चुअल पाथ नहीं है, तभी मैं उस ट्रैफिक को किसमें कैरी करवा रहा हूं, एक अलग वीलन। उस वीलन को क्या बोल दिया, आर स्पैन वीलन। क्या बोल दिया? अब एक बात बताओ, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो मेरा पाथ है स्विच 1 से लेके स्विच 3 तक, ये कोई एक्चुअल पाथ तो नहीं है ना ट्रैफिक का, ये तो स्पैन पाथ है। ये कौन सा पाथ है? स्पैन पाथ। तो इसके लिए हमने एक आर स्पैन वीलन बनाई है हर स्विच पे, और बताया स्विच को वीलन किस लिए, आर स्पैन के लिए, रिमोट स्पैन के लिए। किस लिए? आर स्पैन के लिए। अब स्विच करेगा क्या? स्विच विल नेवर लर्न मैक एड्रेसेस फॉर आर स्पैन वीलन। स्विच विल नेवर लर्न मैक एड्रेसेस फॉर आर स्पैन वीलन। देखो, मैक एड्रेस कब लर्न करने की जरूरत है? When it is required to learn MAC addresses whenever actual traffic is sent. Whenever actual traffic is sent. समझने की कोशिश करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। Let's say भाई ये स्विच है, A और B बात कर रहे हैं, तो इसको पता है ना where A is connected and where B is connected, so it is able to forward the traffic. Agree? But this time traffic of A and B is sent to this guy. Sent to? इसको भेज दिया ना हमने, तो इसको तो एक्चुअल सोर्स और डेस्टिनेशन का कुछ लेना देना ही नहीं है। एग्री? सो फॉर रिमोट स्पैन वीलन स्विच विल नेवर लर्न मैक एड्रेसेस। स्विच फॉर रिमोट स्पैन वीलन स्विच विल नेवर लर्न मैक एड्रेसेस। क्लियर? सो व्हाट विल हैपन व्हेनेवर switch will receive traffic on this port, it will tag it with VLAN 100 and send it to switch 2. Switch 2 without learning any MAC address forward it to switch 3. 3 will get to know which VLAN tag I am getting with the traffic. VLAN 100. Switch on switch 3 I will configure source as VLAN 100 and destination as this particular. Destination as this particular port. और R span VLAN बनाने का लॉजिक क्या है? देखो यार, स्विच मैक एड्रेस कब लर्न करता है? जब ट्रैफिक हिट करता है पोर्ट पे। और मैं क्या कह रहा हूं, आर स्पैन वीलन के लिए कभी भी स्विच ट्रैफिक लर्न, सॉरी मैक एड्रेस लर्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा यार? वो एक्चुअल फ्लो नहीं है ना। देखो, अब मैं कह रहा हूं ए बी से बात कर रहा है, तो अगर ये मैक एड्रेस लर्न कर लेता यहां पे, तो बी के लिए ट्रैफिक यही नहीं फॉरवर्ड कर देता। एग्री? तो ना ही वो ट्रैफिक को चेक करेगा, ना ही मैक एड्रेस को लर्न करेगा। ट्रैफिक को VLAN 100 का टैग लगा के आगे क्या करता रहेगा, फॉरवर्ड, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन स्विच तक ना पहुंचे। जब तक वो अपने डेस्टिनेशन स्विच तक ना पहुंचे। क्लियर? अब लेट्स से तूने यहां लगा दिया एक सोर्स VLAN 100 के लिए, यहां लगा दिया एक सोर्स, इस पोर्ट को भी कैप्चर कर रहा है, तो स्विच क्या करेगा? इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर आगे ट्रैफिक क्या हो जाएगा? ड्रॉप। क्योंकि उसके पास कोई VLAN 100 में एक्टिव यूजर नहीं है, तो ट्रैफिक क्या हो जाएगा? ड्रॉप। रिसीव ही सिर्फ कौन से स्विच पे होगा? स्विच 3। कौन से स्विच पे रिसीव होगा? स्विच 3 पे। देखो फिर बता रहा हूं, लेट्स से सोर्स इज एग्जिस्टिंग हियर एंड डेस्टिनेशन इज एग्जिस्टिंग हियर. We are using which span? So which VLAN we have defined for remote span? 100. So whenever this switch will receive traffic, it will replicate same traffic out of all trunk ports with a tag of VLAN. With the tag of VLAN, this switch will receive it. This will send it to the destination port. This switch will receive it, and it will drop the traffic. Why? There is no user in VLAN 100. There is no user in VLAN. This thing is clear. How R span will work? Any problem in understanding this? And always keep this thing in mind for R span VLANs, which will never learn MAC addresses. Which will never learn MAC addresses. चले भाई आगे. हाँ, VLAN की तो एक्चुअल से डेटा नहीं है, तो इसी का मैं डेटा से
मैं कह रहा हूं जो मेरा कैप्चर ट्रैफिक है उसके लिए मैक एड्रेस लर्न नहीं होगा। जो कैप्चर ट्रैफिक सेंड होगा ना VLAN 100 के लिए, जब मैक एड्रेस टेबल बनती है उसमें एक एंट्री आती है ना भाई VLAN की भी, वो VLAN 100 के लिए आप कोई मैक एड्रेस लर्न नहीं करेगा। लेट्स से ये तेरे यूजर हैं VLAN 10 में, यहाँ भी 10 में, यहाँ भी 10 में, 10 के लिए मैक एड्रेस लर्न होगा, लेकिन 100 के लिए कभी भी मैक एड्रेस लर्न नहीं होगा। यूजर हो गए उससे क्या, दोबारा बोलो। पर्टिकुलर यूजर होंगे जिस VLAN में, उसके लिए लाइन होगी। बिल्कुल, जिसमें पर्टिकुलर यूजर होंगे, और मैं कभी भी VLAN 100 में कोई यूजर कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा। हाँ जी सर जैसे यूजर नहीं है, ठीक है, और स्विच को कैसे पता चलेगा ये मतलब एक्चुअल ट्रैफिक नहीं है और नॉर्मल है? स्विच को पता क्यों लगाना है? तो स्विच पे बता तो रहा है VLAN 100 R-span VLAN है। सर इस चीज से उसे डिफरेंशिएट करना। हाँ, मैं स्विच पे ऐसे डिफाइन करता हूँ ना, VLAN 100 रिमोट स्पैन, तो स्विच को पता चल जाता है VLAN 100 रिमोट स्पैन है, तो उसका मैक एड्रेस। हाँ उसका मैक एड्रेस लर्न नहीं कर। और पूरे नेटवर्क में आपको हर स्विच को बताना पड़ेगा ये VLAN क्या है, रिमोट स्पैन। क्लियर भाई? रिमोट स्पैन के VLAN के लिए क्या BTP प्रूनिंग काम करेगा? यार फिर वही बात, VTP प्रूनिंग कब काम करता है? लोकल VLANs के लिए भाई। और ये क्या है? एंड टू एंड VLAN है। कहानी खत्म हो गई। VLAN 100 एंड टू एंड बना दी ना तूने, पहले भी बना दी और लास्ट में बना दी। और वो कोई ब्रॉडकास्ट नहीं है, वो कैप्चर ट्रैफिक है। VTP प्रूनिंग क्या काम करता है? ब्रॉडकास्ट को रोकता है। ये कोई ब्रॉडकास्ट है? नहीं, ये क्या है? कैप्चर ट्रैफिक, जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन पहले से ही क्या है? डिफाइंड है। तुम उस ट्रैफिक को VLAN के साथ टैग करके सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। और वो भी तुमने स्विचेस को बता दिया है कि इस VLAN के लिए मैक एड्रेस को लर्न मत कर। यार खाम खा के एंट्रीज क्रिएट होंगी जिसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एक्चुअल ट्रैफिक नहीं है। देखो यार, लेट्स से ये 10.2 है, ये 10.1 है, ये 10.2 10.1 से बात कर रहा है, तो ट्रैफिक का फ्लो तो क्या ये है? अगर ये VLAN 10 में है तो मैक एड्रेस किस VLAN के लिए लर्न होना चाहिए? 10 के लिए। लेकिन मैं सेम ट्रैफिक को कॉपी करा रहा हूँ, कहाँ पे? स्विच 3 पे। इसके लिए मैक एड्रेस लर्न करने की क्या जरूरत है? एक बात बताओ, कभी VLAN 100 में कोई यूजर होगा? नहीं होगा। VLAN 100 से ट्रैफिक जनरेट होगा? नहीं होगा। मैक एड्रेस लर्न करवा के क्या करूंगा? मैक एड्रेस लर्न करवा के क्या? मैक एड्रेस लर्न करवाने का लॉजिक क्या है? यूजर्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन। तो ये कभी भी R-span VLAN में तो हम किसी यूजर को कॉन्फ़िगर करेंगे ही नहीं। इसका मतलब कभी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। हाँ जी यार, प्रैक्टिकल कराऊंगा भाई, चिंता ना कर। ठीक है भाई। अगर मुझे कोई ट्रैफिक मॉनिटर करना है, राउटर से किसी और डेस्टिनेशन डिफरेंट एनआईडीज पे करना है, तो कैप्चर उसी पर्टिकुलर स्विच पे कैप्चर करके पीकेएफ फाइल बना के कर सकते हैं या किसी वजह से कर सकते हैं? जैसे मर्जी कर ले यार, तेरी मर्जी है। ये रिमोट स्पैन जो है विदिन VLAN काम करता है। अगर मुझे किसी विद इन अ नेटवर्क, नेटवर्क आईडी, हाँ विद इन अ नेटवर्क काम करता है। आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हो सकती है, बट मस्ट नॉट बी सेपरेटेड बाय राउटर, बट मस्ट नॉट बी सेपरेटेड बाय राउटर। मैंने यहाँ डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन टर्म इसलिए यूज किया, सोर्स एंड डेस्टिनेशन कैन बी मेंबर ऑफ डिफरेंट VLANs, इसलिए। ठीक है जी, ये मतलब नहीं है यहाँ राउटर के इधर सोर्स लगा दिया और इधर डेस्टिनेशन लगा दिया, अब सर करवाओ कैप्चर। कभी कैप्चर नहीं होगा। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होनी चाहिए? ओवरऑल क्या होनी चाहिए? सेम जो आगे क्या हो, VLANs के थ्रू डिवाइडेड। ठीक है जी। ER स्पैन आ जाएगा ना यार, फिर उसकी बात कर लेंगे। पहले रिमोट स्पैन देख लें, तो पहले डायग्राम से दिखा देते हैं। देखो, ये सोर्स है, डेस्टिनेशन है, और ये दूसरे स्विच पे क्या लगा हुआ है? एनालाइजर। ये रिमोट स्पैन VLAN बनाते हैं। ऐसे डिफाइन करते हैं भाई रिमोट स्पैन VLAN। देख ले, VLAN ID और रिमोट स्पैन, ये कमांड्स हैं। मॉनिटर सेशन डेस्टिनेशन,
हाँ, अब एक बात तो क्लियर हो गई होगी आपको डायग्राम को ही देख के. लेट्स से दिस इज माय सोर्स स्विच. ऑन दिस सोर्स स्विच, सोर्स विल ऑलवेज बी अ व्हाट द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. जो स्पैन में सोर्स था, लेकिन सोर्स स्विच पे हमेशा डेस्टिनेशन क्या होगी? वीलैन. सोर्स स्विच पे हमेशा डेस्टिनेशन क्या होगी? और डेस्टिनेशन स्विच पे हमेशा सोर्स क्या होगा? वीलैन. डेस्टिनेशन स्विच पे हमेशा सोर्स क्या होगा? वीलैन. भाई ये याद रखना. पढ़ लेना भाई इसको घर जाके एक बार. ठीक है जी. अब एक टॉपिक रह जाता है जिसका नाम है कितने लोगों को जीआरई टनल याद है? यार जीआरई मतलब बिल्कुल ही यार तुम एक तो घुस जाते हो. कंसेप्ट याद है जीआरई में? हम ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट करके भेजते रहे. क्या करके भेजते रहे? द सेम. बोल ले भाई, पर दिल की बात तो कर ही ले. ओ भाई तेरे को ऐसा क्यों लगता है दुनिया इधर से बहुत जलती है? नहीं, अरे तेरे को तो बोल ही नहीं रहा मैं, इसको बोल रहा हूँ. अरे मैं हर तेज से तेरी फोटो देखता हूँ, ऐसा ही कुछ लिखा होता है. मैं इन सीरियस ले जाता, हर कोई पढ़ के ऐसे ही सोचता, पता नहीं आदमी क्या सोच रहा है. और ट्रोल करने के लिए वही जगह छोड़ना है, वो भी अपनी फोटो डाल के. चलो जी ठीक है. ईआर स्पैन में क्या होता है? लेट्स से एक राउटर है, ये मेरा क्या है? एक सोर्स. फाइन. ये मेरा क्या है? एनालाइजर. It means source and destinations are member of different broadcast domain. Can be separated by a router, can be separated by multiple routers, can be separated by WAN also. Can be separated by. There can be a chance source is in Bangalore and destination is in UK. ठीक है जी. ऐसा भी हो सकता है सोर्स कानपुर में हो, डेस्टिनेशन इटावा में हो. ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, केरला में हो. ठीक है भाई. ठीक है भाई. अब इस केस में हम किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? ईआर स्पैन. What can be source, what can be destination, things will remain same. The concept we are using here will be, I will be telling my switch, whenever you receive any traffic on this port, please encapsulate that traffic to that IP. हम दोनों switches पे एक SVI बनाएंगे जिनमें आपस में क्या होनी चाहिए? रीचेबिलिटी. उन SVIs में आपस में क्या होनी चाहिए? रीचेबिलिटी. Now I will be telling switch 1, whenever you will receive traffic on this port, please replicate this traffic to which IP? To that IP. तो स्विच क्या करेगा? उस ट्रैफिक के साथ, एक्चुअल ट्रैफिक के साथ नया क्या ऐड करेगा? IP हेडर. नया क्या ऐड करेगा? देखो, लेट्स से हम बात करते हैं इसकी. या IP है 100.1 या IP है 200.1. So what switch will do? Let's say source 10.1, destination 10.2. 10.1 is communicating with 10.2 and you have configured this port as source port. So whenever switch will receive traffic on this port, ये actual traffic है आपका traffic in which source is 10.1 and destination is 10.2. Switch will encapsulate this traffic with new IP header, source 100.1, destination, and forward it to R1. R1 will forward it to switch 2. It will decapsulate it and it will send this traffic to the analyzer. Send this traffic to the analyzer. तो यहाँ किसका कंसेप्ट यूज हो रहा है? बेसिकली
Encapsulation means एडिंग कल और बता दूंगा थोड़ा बहुत ER स्पैन के बारे में, ठीक है भाई।